السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت بھائی؟ ہاں الحمدللہ. میں آپ کو ایک مسئلہ پوچھنا چاہ رہا تھا تمہارے سے. بتا سکتے؟ ہیلو. ایک مسئلہ پوچھنا چاہ رہا تھا تمہارے سے. ہاں بھائی آپ کون بول رہے ہیں؟ عبداللہ خان. اچھا عبداللہ خان. ارے ہاں تو آپ کو مسئلہ پوچھنا ہے؟ ہاں عالم مان کے مسئلہ پوچھ رہے ہیں یا اپنا امام مان کے؟ یہ تم جو بول رہی ہے حدیث میں یا قرآن میں ہے؟ نہیں کیونکہ آپ کے وہاں جو مقلد ہوتا ہے نا وہ خالی عالموں سے پوچھتا ہے، ان کی تقلید کرتا ہے. تو آپ مجھے عالم مان کے میری تقلید کریں گے یا اپنا امام اعظم مان کے میری تقلید کریں گے؟ میں یہ پوچھا کہ تمہیں حدیث میں ہے. ہاں حدیث میں. ارے یار تمہارے وہاں کا تو ماننا ہے کہ جس چیز کا علم نہ ہو علم والوں سے پوچھ لو، اور علم والوں سے پوچھنا بھائی تقلید ہوتا ہے. کیا روایت پڑھنا تو بھائی تقلید تم کرو گے کیا میری؟ یہ آیت جو تو نے ترجمہ جس کا کیا وہ آیت پڑھ. کیوں پڑھوں؟ کیوں؟ ارے ارے یار تم نے فون مسئلہ پوچھنے کے لیے کیا ہے یا میرا آیت سننے کے لیے کیا ہے؟ اٹھایا نہیں تو جھوٹ بولنا. تم پہلے ایک کام کرو، پہلے خود فیصلہ کر لو تمہیں آیت سننا ہے یا مسئلہ پوچھنا ہے. مسئلہ پوچھنا ہے تو امام مان کے مسئلہ پوچھنا ہے یا عالم مان کے مسئلہ پوچھنا ہے. یار اب اتنے برے دن نہیں آ گئے تمہارے جیسے لوگوں سے پریشان ہوں گے. آیت پڑھ. ارے بولو بھوکو کیا مسئلہ ہے یار تمہارا؟ جلدی ٹائم نہیں ہے میرے پاس. تو نے آیت کا خاموش ہوں. کیا زبردستی ہے کیا؟ کوئی نہیں پڑھیں گے؟ ارے یار پڑھنا جب تو نے کہا تو پڑھ. آیت تو پڑھنا پڑے گا نا. تو تم ثابت کرو تمہارے لیے قرآن حجت ہے. تو میں ابھی پورا قرآن سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک پڑھوں گا. میں دلیل دے دوں گا. ہاں تو دلیل دے دو، ابھی میں قرآن پڑھے دیتا ہوں. قرآن سے میں 4 بھی دلیل دیتا ہوں، لیکن فی الحال جو تم نے آیت پڑھی ہے وہ آیت کا ترجمہ کر. ہاں جس آیت کا ترجمہ میں نے پڑھا ہے کہ جس چیز کا تم کو علم نہ ہو اہل ذکر سے پوچھ لو، میں اس کو عربی میں پڑھ دوں گا. تم یہ ثابت کر دو کہ قرآن تمہارے لیے حجت ہے. میں سب ثابت کروں گا، پہلے تو یہ تو بتا دے. واہ رے واہ، تم بعد میں ثابت کرو گے، ہم پہلے بتا دیں. کیا پاگل سمجھ رکھا ہے؟ ارے احمق الوجود، پہلے بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ تو بتائے گا اگلے آدم کے. اچھا آرام سے بول لو، جب بھوک بھوک کے تھک جانا تب بتا دینا. ہاں بتا. جلدی بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کیا نا وہ آیت پڑھ بولا. ارے مسئلہ بتا یار، جلدی ٹائم نہیں ہے. ارے مسئلہ ہی بتا دوں گا. پہلے تجھے بول دے کہ تجھے آیت نہیں آتی. کہ آپ کو جاہل، آپ کو آیت یاد نہیں ہے. بھائی 1 منٹ ہولڈ کرنا، میرے ابا کا ویٹنگ آ رہی ہے. فون کاٹنا مت. یہ کیسی بات ہے یار؟ آپ کو تمہارے وہاں فون کاٹنا مت. ہو گیا. میں اپنی بیٹنگ میں آؤٹ ہوا، تم بھاگ رہے. آپ کو یہ کام مت کرنا پلیز، اللہ کی. ہاں بولو، فون کٹ گیا، بتاؤ. ارے یار میں کہہ رہا ہوں کہ تمہارے واسطے میں اپنی بیٹنگ کو آؤٹ ہو گیا. میں ایک ہی بال پر آؤٹ ہو گیا. میں پہلی بال کو. بیٹنگ کے کیا میچ کھیل رہے ہو کیا موبائل پہ؟ میچ ہے، کرکٹ کھیل رہا ہوں، گراؤنڈ میں ہوں میں. ابے تو میرے بھائی گراؤنڈ میں کیا وہ کرکٹ میچ کے بارے میں مسئلہ پوچھنے کے لیے فون کیا ہے؟ گڈ کیچ ہے. نہیں مسئلہ تیرے سے بات کر رہا ہوں میں. تجھے تو ترجمہ کیا آیت پڑھ. ارے قرآن تیرے لیے حجت ہے، تو ثابت کر. میں پورا قرآن پڑھ دیتا ہوں نا. بالکل بالکل. سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک 114 صورتیں میں پڑھنے کو تیار ہوں. تو ثابت کر دے حنفی مقلد کے لیے قرآن حجت ہے. تو حافظ قرآن نہیں، مجھے معلوم اچھی طریقے سے. ارے تو دیکھ کے تو پڑھ سکتا ہوں نا. ہاں تو یہ تو نے آیت کا وہ آیت پڑھ. اتنا لیٹ کیوں کر رہا؟ آگے آگے بات چلتی رہے گی. تو اتنا لیٹ کیوں کر رہا ہے ثابت کرنے کے لیے؟ بتا. تو اپنے اپنا اصول قرآن نہیں ثابت کر پا رہا ہے. کتنے شرم کی بات ہے. اصول ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ بھائی تیرے لیے قرآن حجت ہے، تو ثابت کر. 4 اصول ہیں. پہلے حدیث کے 4 اصول ہے. ایسی بات دکھا مجھے. تو اتنا ثابت کر دے حنفی مقلد کے لیے قرآن حدیث حجت ہے. میں وہ سب ثابت کر دوں گا. فی الحال میں کر دوں گا، کر لیں گے، بعد میں لے لینا. یہ سب باتیں میرے بھائی مطلب کہیں اور جا کے کہنا. اللہ بولتا ہوں تجھے میں تاکید کے واسطے. یہ سب جلدی یا تو مسئلہ پوچھ لے جاتے ہیں، یا تو اپنے اصول ثابت کر، اور یا تو فون کر دوں گا آپ کو. لیکن فی الحال میں تجھے کہہ رہا جو تو نے آیت جو پڑھی ترجمہ کیا ہے. عبداللہ دیوبندی بھائی دیکھیے، میں پہلے سے بہت پریشان ہوں، اس لیے آپ کو 3 آپشن دے رہا ہوں.
या तो अपना मसला पूछ लीजिए इज्जत से। कोई जरूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुन लीजिए आप मेरे भाई, हमें मालूम है आप खाली बर्तन है, ज्यादा बोलने की आपको बीमारी है, मुंह में इंजन ऑयल भर के आप बोलना शुरू करते हैं। ये तो लाजिम मलजूम है। भाई आप कौन सा इंजन ऑयल पी के बात करते हैं, कैस्ट्रॉल का या मैक्स का, या कौन सा इंजन ऑयल पी के बात करते हैं? वो क्या ना अफू के अरबी में समझे समझ। अरे अरबी तो जो मेरे भाई सऊदी अरब के जो कौटिब भाई क्रिश्चियन है उनको भी अरबी आती है। अब क्या वो ईमान वाले हो गए? मेरे पास सऊदी अरब के जो मेरे भाई ईसाई लोग हैं, ईसाई पादरी हैं, वो भी अरबी में कुरान पढ़ते हैं, तो क्या उनको ईमान वाला बना ले होंगे? हद है जी हालत की। अरबी का मुकाबला मेरे को मत दिया करो भाई। अब मैं बोलूं, सुनेंगे आप? हाँ बोलो। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास भाई 3 ऑप्शन है, या तो अपना मसला मुझसे पूछिए। मैंने कहा सुन तो लीजिए आप, मुतालबा क्या वो आयत पढ़ो। तो वही तो मैं बता रहा हूँ ना। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप अपना मसला पूछिए, या तो अगर आपको मेरी अरबी की आयत सुनना है तो कुरान आपके लिए हुज्जत है, इसको साबित कीजिए, और तीसरा ऑप्शन है अपना फोन काट दीजिए। ऑप्शन है, ये 3 ऑप्शन है, इसमें से जो आपको चाहिए मेरे को कबूल है। कहा है ये जो तूने 3 ऑप्शन करवाया है। हाँ आपको भाई 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आप जल्दी कबूल कीजिए। दे रहा है क्या अल्लाह ने इसका हुक्म दिया या रसूलुल्लाह ने इसका हुक्म दिया है? और तू जो ये क्रिकेट मैच खेलते हुए दीन की बात कर रहा है कि अल्लाह के नबी ने ऐसा करने को बोला है, या तेरे इमाम आजम अबू हनीफा ने ऐसा बोला है? अल्लाह का रसूल से साबित कर दे, उसूल दे दिया गया दीन में, समझा? हाँ तो ये उसूल निकाल करके दे दिया गया है, समझा? जो मसले को बात कर दिया, इससे वर्जिश देखो ऐसा है, फालतू की बकवास करना बंद करो और मेरी बात सुनो। 3 ऑप्शन है तुम्हारे पास, 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जल्दी सुनो। किया है वो तो इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने क्रिकेट मैच खेला है? इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने कहा है कि मतलब वो क्रिकेट मैच खेलो, मजबूत बैट बॉल खेलो, बल्ला गेंद खेलो, पहली बॉल पे आउट हो जाओ, छक्का मार दो, चौवा मार दो, कत्ल करते। फिर वही चीज यार, अपने इमाम की तकलीफ करते हो, अपने इमाम की तकलीफ में क्रिकेट मैच भी खेल रहे हो यार। अल्लाह अकबर, मैं कह रहा हूँ तू आयत पढ़ेगा यार, मैं क्रिकेट मैच की तरफ भी आ जाऊंगा। तो कब आएगा तू तो कहीं आता ही नहीं है, तू तो बस ना, तेरे को तू खाली बर्तन है भाई, तू फालतू टाइम वेस्ट है। आपने खाली बर्तन तू है भाई। फिर वही चीज, आपको मसला पूछना था, आपने मसला पूछने के लिए फोन किया था। मैं मसला या तो मसला पूछिए, या तो अपने लिए कुरान को हुज्जत साबित कीजिए, और या तो फोन काटिए। मैं फोन नहीं कट करने वाला हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने जो तर्जुमा किया, कम से कम मुझे मसला आपने अफ्फू खान के पास पूछने के लिए फोन किया है, तो या तो अफ्फू खान को आप आलिम मानते हैं, या तो अपने से ज्यादा इल्म वाला मानते हैं भाई, तभी तो आप मसला पूछ रहे हैं। जाहिदों से तो मसला पूछता नहीं है। आयत भी याद नहीं है आप तो? आयत हमें याद है, लेकिन जिसके लिए हुज्जत नहीं है, मैं उसके सामने आयत पढ़ के कुरान की बेइज्जती क्यों करूँ? माज़अल्लाह, तुमने कहा कि हमारे लिए कुरान हदीस, तुम्हारे वहाँ तो फारसी में अजान है, फारसी में नमाज है, तुम लोग के वहाँ अरबी में है क्या? तुम अरबी का इतना बड़ा धोच जमाते हो, तुम्हारे वहाँ अरबी में है क्या? के लिए कुरान हदीस। चलो अच्छा ठीक है, मैं अरबी की आयत पढ़ रहा हूँ, चुप रहो। मैं अरबी की आयत पढ़ रहा हूँ, चुप रहो। ठीक, अरबी की आयत से कुरान पढ़ो, हदीस को अक्ल मत चढ़ाओ। अरे यार, अभी जो मैंने तर्जुमा किया है कि जिस चीज का तुमको इल्म ना हो अहले जिक्र से पूछ लो, मैं वो अरबी में पढ़ रहा हूँ। ठीक, पढ़ दो। तुम फारसी में अजान दे के दिखाओ। अरे अल्लाह अकबर, तड़ा पड़ा क्यों? क्या वारे वाह, तुम्हारी दुर्र मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 58 पे लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स फारसी में अजान दे तो देना दुरुस्त है, अगर लोग ये जान जाए कि अजान दिए तो फारसी में अजान देना। आयत पढ़ पहले। तो फारसी में अजान दे, फारसी में अजान दे, फारसी में अजान दे। अजान भी दे दूंगा। अपनी हनफी फिक़ह पे अमल कर, फारसी में अजान दे। तेरे लिए अरबी हुज्जत कहाँ है? हर मसला तेरे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को अरबी नहीं आती थी। से नहीं होता है पगले आदम कहीं के। अरे फिर वही चीज यार, फारसी में अजान दे के दिखाओ ना। अरे अल्लाह अकबर, मैं तो बोल रहा हूँ वो इमाम आजम के लिए था। अगर वो इत्तेहाद के, अरे तो उनके लिए था तो उन्हीं के लिए छोड़ दो ना, तुम अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? उनकी तकलीफ अपने ऊपर वाजिब क्यों कर रहे हो?
इज्तिहाद किया, अगर गलत किया तो 1 अजब 2 अजब। वो अबू हनीफा रहमहुल्लाह। हाँ तो गलत है ना, ये मान लिया तूने फारसी में अजान देना गलत है, इससे पूछ, वो तूने मान लिया ना फारसी में अजान देना गलत है। देता हूँ भाई तूने मान लिया ना फारसी में अजान देना गलत है, कुरान हदीस से साबित नहीं है। अरे अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने उस कौन से रुजू कर लिया, और कौन से रुजू कर लिया, कहाँ किया, कौन सी किताब में रुजू किया? रुजू कर लिया, मैं उसकी तरफ। अबे किस किताब में रुजू किया कल के अंदर? अरे अहमकुल वजूद में किताबें पढ़ता हूँ, तेरी तरह जाहिल नहीं हूँ मैं। कौन सी किताब पढ़ी बता ना। मैं ये कह रहा हूँ, आज पढ़ा हुआ नहीं है। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की लिखी हुई कौन सी किताब है जिसमें उन्होंने अपने कौल से रुजू कर दिया? झूठे आजम, झूठे मक्कार, खाली दिमाग है देवबंद वाले। वो तो तू अपने ऊपर कयास कर, मैं कह रहा हूँ बेटा जो ये दीन है ना, ये दीन कोई क्रिकेट मैच नहीं है कि तू बैटिंग कर रहा है और मैं बॉलिंग करूँ। ये दीन हम तक बड़ी मुसीबतों से पहुँचा है। दीन हमारा कुरान हदीस है, आसमानी दीन है। अरे ठेले चलाने वाला भी अपने आप पहले हदत करता तो हम उसको मान लेंगे क्या? अरे तो ठेले चलाने वाला भी अगर कुरान हदीस पे अमल कर रहा है वो भी अहले हदीस है। अगर कोई जमादार है कि लैट्रिन साफ करने वाला भी कुरान हदीस पे अमल कर रहा है, ईमान वाला है, तो वो भी अहले हदीस है। क्या मैं कह रहा हूँ, तो आयत। अरे अहले हदत तो तुम लोग हो, तुम लोग को मेरे भाई हसद है, जलन है कुरान हदीस से। हम तो असाबुल हदीस अहले सुन्नत वल जमात है। अरे यार अशरफ अली थानवी अंग्रेजों के वहाँ 600 रुपए तनख्वाह पे काम करते थे तो वो मलका विक्टोरिया का गुलाम हुआ ना यार। फिर वही चीज, मेरा मुंह ना खुलवाओ, अल्लाह का खौफ है इसलिए चुप हो। नहीं अंग्रेजों का कौन मेरे भाई दुबुर चाटता था, मेरा मुंह ना खुलवाओ। बटालवी था अरे मलिका विक्टोरिया के इतने बड़े फैन हो तभी तो उनकी याद में तुमने हंसी टीका लिखी कि अगर कोई दुबुर में आला तनस्सुल दाखिल करते तो वजू नहीं टूटता है, अगर कोई हाथों से मनी खारिज करते तो रोजा नहीं टूटता है। ये सब विक्टोरिया की तुमने खुशी में तो ये सब लिखे थे मसले बताए। मैंने कहा मलिका विक्टोरिया को खुश करने के लिए तू एक मसले पर 2000 मसले पर छेड़ ले, मैं एक ही मसले पर रहूंगा। मैं भी एक ही मसले पे रहूंगा कि 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन कबूल करो, या तो फोन काटो, या तो अपना मसला पूछो, या तो अपने लिए तुम्हारे लिए कुरान हुज्जत है साबित करो। मसला पूछूंगा, तू मसला पूछ, या तो फोन काट, या तो अपने लिए कुरान को हुज्जत साबित कर। याद नहीं है तुझे? आयत याद नहीं है? मैं पढ़ दूं? बोल। अरे मेरे को याद है ना, लेकिन मैं क्यों पढ़ूं? कुरान पढ़ने में क्या, कुरान पढ़ने में सवाब है। कुरान पढ़ने का सवाब है, लेकिन जिसके लिए हुज्जत नहीं है उसके सामने मैं टाइम वेस्ट क्यों करूं? इसके ऊपर हदीस देगा कि मेरे लिए हुज्जत नहीं है कुरान है? अरे मुकल्लिद के लिए कुरान हुज्जत है, ये कहाँ लिखा है? तू दलील देगा ना। मेरे मौलाना महमूदुल हसन हनफी देवबंदी लिखते हैं कि हम तो मुकल्लिद हैं, हमारे लिए कुरान हदीस से कोई लेना देना नहीं है, हमारे लिए इमाम का कौल फुकाहा की राय हुज्जत है। मैं कुरान से तो इमाम का कौल हुज्जत है ना तेरे लिए। पागल नहीं, मैं दलील देता हूँ बेटा, याद रख लेना एक बात। अरे दलील तू बाद में देना, पहले फारसी में अजान तो देके दिखा। रिवायत पढ़ दी थी जो तू फारसी में अजान देके दिखा, अरबी का बोल बच्चे मत दे मेरे को। मैंने 1 सेकंड के अंदर पढ़ दिया था, समझा? यार फारसी में अजान देगा कि नहीं देगा? यार मैं कह रहा हूँ, मैं फारसी में भी अजान दे दूंगा। अच्छा अल्लाह अकबर को फारसी में क्या कहते हैं? मैं बोलूंगा, सब जवाब दूंगा, तो ये सब एक। कब बोलोगे? मरने के बाद बोलोगे, कब्र में बोलोगे, जब फरिश्ते तुमसे सवाल जवाब करने आएंगे तो वहाँ फारसी में अजान दोगे? आज तो थोड़ी नहीं होगी अब। अरे जल्दी बोलो मेरे भाई, फारसी में अजान देना आता है कि नहीं? मैंने पढ़ भी दिया। अरे आयत मैंने तेरे से पूछी नहीं, मैं तो फारसी में अजान पूछ रहा हूँ, तू पढ़ रहा है आयत। अब ये मैं कर रहा हूँ, चल छोड़। अजीब पागल आदमी, सवाल तुझसे मैं इमली का कर रहा हूँ, जवाब तू आम का दे रहा है। जो तूने आयत का तर्जुमा किया, जो आयत अब्दुल्ला भाई किसी अच्छे डॉक्टर के पास अपना इलाज कराइए मेरे भाई। वो आयत मैंने पढ़ दिया। अब मैं ये कह रहा हूँ तुझसे कि फारसी में अजान दीजिए, उसे जायज नहीं है, दाढ़ी कट करना। जल्दी जल्दी बता भाई, थोड़ा सवाल आराम से बोलिए, इंजन और फूक के। कि एक मुश्त जो जायद दाढ़ी है, उसको जो एक मुश्त जायद दाढ़ी है उसे कट करना जायज है या ना जायज? ये एक मुश्त पहली चीज तो कहाँ से लेके आए ये बताओ? मैं ये पूछ रहा हूँ, है ही जायज या नहीं? सही है, बुखारी की हदीस है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया मूसों को तराशो और दाढ़ी को छोड़ दो, माफ कर दो। तो ये एक मुश्त कहाँ से आ गया? तो मत काटो, ये लफ्ज मुझे दिखा दे। अरे तो माफ करने का मतलब क्या होता है? छोड़ने का मतलब क्या होता है?
छोड़ने का मतलब है कट करना, छोड़ना पड़े तो एक मुश्त तक छोड़ना, उसके बाद कट करना। तो एक मुश्त कहाँ पे हदीस में अल्फाज दिखा बुखारी की? एक मुश्त की। अब तूने हदीस में झूठ बांधा है। माज़अल्लाह, तौबा तौबा, जानते बूझते अल्लाह के नबी की हदीस में झूठ बांधा। एक मुश्त का अल्फाज हदीस में दिखा, बुखारी की हदीस में एक मुश्त का हदीस दिखा, बुखारी शरीफ की हदीस में एक मुश्त इसका अल्फाज दिखा। अबे तू पढ़ना, दलील तेरी है ना, दावा तेरा है ना कि एक मुश्त हदीस में आया है, एक मुश्त। चल पढ़, मैं तुझे दलील देता हूँ। हाँ, एक मुश्त का अल्फाज उसमें आना चाहिए। अरे सनद तू छोड़, तू खाली एक मुश्त को अरबी में क्या कहते हैं चल बता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक मुश्त को अरबी में क्या कहते हैं? मुखालफत कर ले, हदीस दे रहा हूँ, हदीस दे रहा हूँ। अबे हदीस ना दे, जो मैं पूछ रहा हूँ वो देना, पागल आदमी। हदीस तेरे कहाँ समझ में आएगी, तू तो मुकल्लिद है। एक मुश्त को अरबी में क्या कहते हैं? अरे एक मुश्त को अरबी में क्या कहते हैं बताना। ये पैगाम दे रहे हैं, लोगों दाढ़ी बढ़ाओ, मूछे कटाओ, और एक मुश्त दाढ़ी उसको पकड़ कर काट भी रहे हैं। अरे एक मुश्त का मेरे भाई अरबी में हवाला देना, एक मुश्त को अरबी में क्या कहते हैं? भाई लग रहा है क्रिकेट मैच खेलते खेलते तू पागल हो गया, बॉल तेरे सर पे लग गई है, तू पागल हो गया। भाई हेलमेट पहन के मैच खेला करो, ठीक है? हेलमेट पहन के मैच खेला करो। लग रहा है बॉल तुम्हारे सर पे लग गई है, तुम्हारा जो दिमागी जो संतुलन है वो खो गया है, बिगड़ गया है। तुमने कहा कि एक मुश्त के बाद दाढ़ी काटना चाहिए, तो ये अल्फाज मुझे हदीस में दिखाओ। हदीस में है, देख तर्जुमा कर ले खुद। एक मुश्त कहाँ है? जो जायद दाढ़ी तुझे पकड़ कर कट करे तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, देख ले। अरे अल्लाह के नबी की, अभी तो अल्लाह के नबी की हदीस बता रहा था, साहबी पे भाग गया। तर्जुमा किया उन्होंने साफ लिखा है, एक जायद दाढ़ी तुझको पकड़ कर कट भी कर रहे अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा। अबे तो वो कहाँ से पकड़ना है? कहाँ से पकड़ना है? हाथ से पकड़ना है, एक मुश्त देख लेना, उसके बाद में कट करना है। अरे हाथ से आदमी पकड़ता, हाथ से, ये पैर से नहीं पकड़ता है। हाथ से नहीं पकड़े, पागल, कहाँ से पकड़ना है? अपनी ठुड्डी से पकड़ना है या दाढ़ी की बिल्कुल निचाई पे रख के पकड़ना है? तुझे मसला मालूम नहीं। चल यहाँ तो पिटा गया तू जाहिल है बेटा, तेरे को कुछ नहीं मालूम है कि कहाँ से कैसे पकड़ना है। यहाँ तो बहुत पिटा लिया। ये उम्रे और हज का मामला है। टॉपिक पे आ जाते हैं, दूसरे टॉपिक पे हम आ जाते हैं। यहाँ तो पिटा। अच्छा ये बता दे, अल्लाह के नबी की दाढ़ी कैसी थी? रफ़ी करना क्या है? अल्लाह के नबी की दाढ़ी कैसी थी? अल्लाह के नबी की दाढ़ी जैसी दाढ़ी थी वैसी दाढ़ी थी। अरे कैसी दाढ़ी थी? जैसी दाढ़ी रहना वैसी दाढ़ी, जैसी दाढ़ी रहती वैसी दाढ़ी थी। ये देखो ये आए नबी की उम्मती। अल्लाह के नबी की दाढ़ी घनी थी। अभी कल को तेरे से कोई पूछेगा अल्लाह के नबी की नमाज कैसी थी तो कहेगा नहीं वैसी थी जैसी थी। अबे तो कैसी थी? नमाज खुशू वाली थी, खुदू वाली थी, बेहतरीन थी, उम्दा थी। तो वही तो पूछ रहा हूँ, अल्लाह के नबी की दाढ़ी की लंबाई क्या थी, कैसी दाढ़ी थी? तो एक काम कर, इसके ऊपर हदीस के ऊपर कि अल्लाह के रसूल की दाढ़ी की लंबाई क्या थी? अरे यार फिर वही चीज, अल्लाह के नबी की दाढ़ी एक मुश्त के बाद क्या वो कटी हुई थी? अरे सहाबी रसूल ने हदीस दिया, उसका मतलब अल्लाह के नबी की दाढ़ी, क्या अल्लाह के नबी ने अपनी पूरी जिंदगी में एक बार भी दाढ़ी को काटा? अल्लाह के नबी ने कभी पूरी जिंदगी में एक बार भी दाढ़ी को काटा? आपको फैसला कर ले तुझे। अब चल मैं तेरे को बता देता हूँ मेरे नबी की दाढ़ी कैसी थी, सुन ले। अबे बस की दुकान बंद कर यार, सरदर्द करने लगा है, चुप हो जा थोड़ी देर। इंजन ऑयल फूक से अपने मुँह का फोन कर भाई, इसीलिए तेरा ना मैं फोन उठाता हूँ ना तेरे को फोन करता हूँ, तू बोलने नहीं देता है, तू खुद ही बक की दुकान चालू हो जाता है। उसके पास चला सकता है बेटा अब्दुल्ला खान, मैं तेरे को बताता हूँ अल्लाह के नबी की दाढ़ी कैसी थी। अल्लाह के नबी की दाढ़ी के ताल्लुक से हदीस शरीफ में आता है, बुखारी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के नबी की दाढ़ी बहुत घनी थी और बहुत बड़ी थी और छाती तक फैली हुई थी। अल्लाह के नबी जब नमाज पढ़ते थे और जोहर की नमाज पढ़ते थे तो अल्लाह के नबी की दाढ़ी आगे पीछे हरकत करती थी, तो सहाबा समझ जाते थे कि अल्लाह के नबी कुछ पढ़ रहे हैं, तभी उनकी दाढ़ी हिल रही है। समझे? जाहिल आदमी, तेरे को ये भी नहीं पता कि नबी की दाढ़ी कैसी थी और तूने हदीस के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया कि अल्लाह के नबी ने दाढ़ी काटी, एक मुश्त के बाद दाढ़ी काटने का हुक्म दिया। अबे ता कयामत तक साबित नहीं कर पाएगा कि अल्लाह के नबी ने एक मुश्त के बाद दाढ़ी को काटा।
जिंदगी में कभी नहीं साबित कर पाएगा अल्लाह के नबी ने एक मुश्त के बाद दाढ़ी काटा या काटने का हुक्म दिया। कयामत तक का चैलेंज है, कयामत तक का। अल्लाह के नबी ने फरमाया मूछों को तराशो और दाढ़ी को छोड़ दो, माफ कर दो। दाढ़ी को हमें काटना ही नहीं है। दाढ़ी कहाँ से काटा अल्लाह के नबी ने, कब काटा, कौन सी एक मुश्त से काटा? अपनी बुद्धि से पकड़ के काटा या दाढ़ी के नीचे के बाल पकड़ के काटा? कैसे काटा? कहीं का सर कहीं की टांग जोड़ के अपना मसला साबित करता है। सहाबिया रसूल ने क्यों कट किया? सहाबिया रसूल ने मेरे भाई, सहाबी रसूल, अरे सहाबी रसूल ने जो दाढ़ी को जो काटा है वो एक मुश्त कहाँ से पकड़ा है ये हदीस में नहीं आता है। और ये जो अमल है ये अमल हज और उम्रे का है, ये आम दिनों का नहीं है। सहाबिया को दाढ़ी दी? हाँ भाई, तुम्हारे घर की औरतों की दाढ़ी होती होंगी तभी तो वो भौवे के बाल बनाती हैं, आईब्रो बनवाती हैं। अरे अस्तगफिरुल्लाह, तू पर साहबी पे तबर्रा पड़ रहा है। अच्छा मुहर्रम आ रहा है ना, शिया बन गया तू। सहाबी पे तबर्रा पड़ रहा है, साहबा को उल्टा सीधा बोल रहा है, गुस्ताखे साहबा। मट्टी पड़ो, डूब के मर जाते हूँ। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास दो शख्स आते हैं और वो एक मसला पूछते हैं। तो अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ऐसा करते थे। तो वो दो लोग पूछते हैं कि नहीं, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कैसा करते थे, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कैसे करते थे? तो अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं तुम पर कौम लूत की बारिश हो, तुम पर कौम लूत के पत्थरों की बारिश हो। मैं तुमसे अल्लाह के नबी का अमल बता रहा हूँ और तू मुझसे पूछ रहा है कि मेरे बाप क्या करते थे और अबू बकर क्या करते थे। तो तुम्हारा भी वही हाल है। अल्लाह के नबी ने जिंदगी में दाढ़ी नहीं काटी, ना कभी दाढ़ी काटने का हुक्म दिया, और तुम कह रहे हो अब्दुल्ला इब्न उमर एक मुश्त के बाद दाढ़ी काट देते थे। जाहिल आदमी, बेटा मसला पहले समझो, उलमाओं की संगत में बैठो, जब दीन समझ जाओगे तब बात समझ में आएगी। खाली बर्तन बन के भाई, हमें लग रहा है क्रिकेट मैच तुमने खेल लिया, बॉल तुम्हारे सर पे लग गई है, बॉल तुम्हारे सर पे भी लग गई है, आंखों पे भी लग गई है। बात अलग फाड़ फाड़ के अरबी पढ़ने से कुछ नहीं हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कयामत से पहले ऐसे लोग आएंगे जो कुरान को जबान मड़ोड़ के पढ़ेंगे, लेकिन कुरान उनकी हलक से नीचे नहीं उतरेगा। तो तुम्हारा वही हो गया है। अरे तुम्हारे जैसे जिस दिन लोग पीटने लगेंगे ना, उस दिन तो नाम खराब हो जाएगा। अब्दुल्ला भाई, आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। का हुक्म क्या है नमाज में? जल्दी बताइए आप, अल्लाह के नबी की दाढ़ी अल्लाह के नबी ने जिंदगी में कब काटी? का हुक्म क्या है? मेरे नबी ने अपनी पूरी जिंदगी में एक मुश्त के बाद दाढ़ी कब काटी? तो कब नहीं कट किया? कभी नहीं किया, तभी तो हदीस में नहीं आया। एक अल्फाज दे दे नहीं कट किया बोल करके। अब्दुल्ला इब्न उमर, अबे जाहिर आदमी, अगर कट किया होता तो सहाबी बताते हैं ना अल्लाह के नबी ने अपनी दाढ़ी काटी। कट किया ना, सहाबी हुज्जत है या नहीं है हुज्जत? अरे सहाबी बाद में हुज्जत है ना, पहले अल्लाह के नबी हुज्जत है। मतलब रसूलुल्लाह की बात को माज़अल्लाह, अल्लाह के नबी के अमल को छोड़ के तू सहाबी के अमल को पकड़ रहा है, वो भी हज और उम्रे का, और उसका भी तेरे को बेसिक नहीं मालूम है। कर ले मेरे हाथ पर, बयान कर ले मेरे। जाहिल आदमी है भाई तू, बहुत बड़ा जाहिल आदमी है। रसूलुल्लाह फरमाने वाले अच्छा उबादा, अच्छा ठीक है, सहाबी को तू मानता है ना? अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब रुकू में जाते थे तो अपने दोनों हाथ अपने रानों पे रखते थे। तो तू क्यों नहीं रखता है? तो तू क्यों नहीं रखता है? सहाबी की क्यों नहीं मानता है? हम क्यों सहाबी को छोड़ा? गुस्ताखे सहाबा। मैं कह रहा हूँ तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने बड़े सहाबी, वो नमाज में रुकू में जाते थे तो भाई वो अपने दोनों हाथों को रानों पे रखते थे, और तू रानों पे नहीं रखता, घुटनों पे रखता है। अब छोड़ दिया साहबा को, अब छोड़ दिया साहबा को, हाथ हो गई यार। तू खुद ही छोड़ रहा है, एक जगह सहाबी को पकड़ता है, दूसरी जगह सहाबी को छोड़ देता है, और अल्लाह के नबी की तो तू मानते ही नहीं है। तो एक काम कर, पहले फैसला कर ले, तो सहाबा की मानेगा या अल्लाह के नबी की मानेगा? और अल्लाह के नबी की नहीं मानेगा तो कौन कौन से सहाबा की मानेगा और कौन कौन से सहाबा की नहीं मानेगा?
तुम्हारे हनफी फिका में तो सहाबा को गालियाँ दी गई हैं, सहाबा को गैर फकी कहा गया है, अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु को गैर फकी कहा गया है, कितने सारे सहाबा को गैर फकी कहा गया है। इस टॉपिक पे हमारी बात ही नहीं है, खलते में बहस कर रहा हूँ। तो ये बता अल्लाह के नबी ने दाढ़ी कब काटी मेरे भाई, एक दलील तो दे दे की अलामत है भाई, कब दलील देगा, मरने से पहले देगा कि नहीं देगा। अरे हमकुल वजूद खलते मबहस करना। चल बेटा, तेरी इनकी औकात नहीं है इनकी बात करने की, दोबारा अबू खान को फोन करना तो पूरी तैयारी करके फोन करना। एक जगह सहाबी का अमल देते हो, दूसरी जगह सहाबा का अमल छोड़ देते हो, अजीब दोगलापन है तुम्हारा। मतलब नबी के अमल को छोड़ के सहाबा को अमल के पकड़ते हो। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह।